مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. بھائیو اور دوستو، ایک زمانہ اس کائنات پہ ایسا گزرا ہے جس کائنات میں اور آپ ایگزسٹ کر رہے ہیں. یہ بھری ہوئی کائنات، رنگوں والی، ذائقوں والی، خوشبوؤں والی، نباتات والی، جمادات والی، حیوانات والی، خلا والی، فضا والی، رنگوں والی، یہ کائنات، اس میں کچھ نہیں تھا. مخلوق اس کو کہتے ہیں جس کا آغاز بھی ہو، اختتام بھی ہو. خالق اس کو کہتے ہیں جس کا اول کوئی نہ ہو، آخر کوئی نہ ہو، آغاز کوئی نہ ہو، اختتام کوئی نہ ہو. پوری کائنات جتنی بھی مخلوق ہے، ایک زمانہ ایسا تھا اس میں کچھ نہیں تھا، بالکل ان کا وجود نہیں تھا. پھر حدیث پاک میں آتا، اللہ فرماتے ہیں میں نے چاہا میرا تعارف ہو، تو اپنے تعارف کے لیے، پہچان کے لیے، اپنے مقام و عظمت بتلانے کے لیے میں نے پھر کائنات کو تخلیق کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میں کتنا بڑا مصور ہوں، مبدی ہوں، باری ہوں، بدی ہوں، سمیع ہوں، بصیر ہوں، علیم ہوں، خبیر ہوں. اپنی صفات کے اظہار کے لیے، لوگوں کے دلوں میں اپنی عظمت پیوست کرنے کے لیے میں نے پھر قرآن مجید میں آتا ہے 6 دن کے اندر پوری کائنات کو اللہ نے وجود دیا. 2 دن میں خلق الارض فی یومین، 2 دن میں زمینیں بن گئیں. جعل فیہا رواسی من فوقہا، 2 دن میں زمین آسمان کا درمیان بن گیا. ثم استوی الی السماء وہی دخان، 2 دن کے اندر پھر زمین آسمان اور آسمان بن گئے. 6 دن کے اندر پوری کائنات کو اللہ نے بنا دیا. بنانے کے بعد اللہ نے ایک بات کی، ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی. یہ تو میں نے بنایا، جو میں نے چیزیں گنی نا، خلا، فضا، زیر زمین، بالائے زمین، زیر آسمان، یہ تو میں نے بنایا. ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی. اچھا، میرے علاوہ کوئی ایسا کائنات کی مخلوق ہے جو ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ میں نے یہ بنایا؟ کتنا بڑا دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، یہ میں نے بنایا. اچھا، کوئی اگر دعویٰ کرے کہ میں نے یہ بنایا تو اس سے پہلے پوچھو اس کو تم نے بنایا، تمہیں بتاؤ کہ تمہیں کس نے بنایا. تو اگر اپنی وجود اور ذات میں بھی کسی کے دست ہنرمند کا شاہکار ہو تو اس کو اپنے وجود کی تخلیق میں اگر تم کسی کے مرہون منت ہو تو یہ دعوت تو ویسے ہی عبث اور دیوانہ لگتا ہے کہ تم یہ کہو کہ میں نے یہ بنایا، جبکہ خود کو کہو مجھے کسی نے بنایا. کائنات کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے. بنانے کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے پوری کائنات کو اپنی انگلی پہ رکھا. فَيَعُذَّهُ، پھر انگلی کو حرکت دی. پھر جب انگلی کو حرکت آئی تو اللہ نے کہا انا الملک مالک الملک ملک الملوک قلوب الملوک فی یدی. پوری کائنات کو اللہ نے ایسے انگلی پہ ہلایا نا، پھر جو کچھ انگلی پہ تھا، اللہ کی انگلی کیسی ہے ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. لیکن پوری کائنات، جس طرح میرے ہاتھ پہ گلاس ہو تو میں ہاتھ ہلاؤں تو گلاس ہلے گا، میرے ہاتھ پہ اگر دانے ہوں تو میں ہاتھ ہلاؤں تو دانے ہلیں گے. اللہ کی انگلی پہ پوری کائنات تھی، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، جن. تو اللہ نے پوری انگلی کو ہلایا، تو انگلی کو ہلنے کے بعد لاجک وائز پوری کائنات ہلی. تو پوری کائنات کو جھٹکا دیا ہے، جڑوں سے ہلایا، اپنی ذات کو ہلایا، ان کو ہلا کے کہا انا الملک مالک الملک ملک الملوک قلوب الملوک فی یدی، میں بادشاہ، میں بادشاہوں کا بادشاہ. تمہاری طاقت یہ ہے کہ تم میری ایک انگلی کے اشارے پہ رقص کر رہے ہو. پوری کائنات کو ہلانے کے بعد ان کی اصلیت کہ پہاڑ نازا نہ ہوں، شیر ناز نہ کرے، سمندر ناز نہ کریں، آگ ناز نہ کرے، کوئی مخلوق اپنی طاقت پہ ناز نہ کرے تاکہ کل میں نے اطاعت کا حکم دینا نا تو کوئی اڑ نہ جائے، یا اللہ میں یہ. تو اللہ نے کہا تم یہ ہو کہ ایک انگلی کے اشارے پہ پوری کائنات کو جھٹکا دے کے کہا میں بادشاہ، میں بادشاہوں کا بادشاہ. اس بات کو منوانے کے بعد اللہ نے پھر ایک بات کی، فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها. پھر اللہ نے پوری کائنات کو کہا اس بات کو تسلیم کرو کہ جو میں چاہوں گا وہ ہوگا. اس بات کو مانو، جو میں چاہوں گا وہ ہوگا. چونکہ اس کی ہر مخلوق کی ذات کو جھٹکا لگ چکا تھا، اصلیت پتہ لگ چکی تھی کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں. پہاڑ ہل گئے، سمندر ہل گیا، جنگل ہل گیا، دریا ہل گیا، آسمان ہل گیا، جنت ہل گئی. تو پوری کائنات ہلنے کے بعد اپنے آپ کو بے وقت، بے حیثیت سمجھ چکی تھی. پھر اللہ نے کہا انا فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها، جو میں کہوں گا وہ ہوگا، جو میں نہیں کہوں گا وہ نہیں کرو گے. تو وہ حدیث قرآن مجید میں آتا ہے پوری کائنات نے کہا قالتا اتینا طائعین، اللہ ہم برضا اور رغبت وہ کریں گے جو آپ چاہیں گے، وہ نہیں کریں گے جو تو نہیں چاہے گا. یہ تخلیق کے، ولادت کے، پوری کائنات کی ولادت کے اولین لمحوں میں جھٹکا دے کر، حیثیت کو ہلا کر اللہ نے تسلیم کروا لیا. ہر مخلوق نے مانا ہم کریں گے. اس لیے
वलहु अस्लम मन फिस समावाति वल अर्ज़, पूरी कायनात की हर मखलूक अल्लाह की बात को मानती है। आज 25 सितंबर है, क्यों जी? अगर आपको मौका मिले पिछले साल 25 सितंबर का कैलेंडर उठाएं और फिर उसमें देखें एक साल कबल 25 सितंबर को सूरज कब गुरूब हुआ था, और आप हैरान होंगे कि आज एक साल के बाद 25 सितंबर को उसी घंटा, वही मिनट, वही सेकंड, उसी माइक्रो सेकंड पे सूर्य गुरूब होगा। ये है सूरज की इताअत करना। एक साल के बाद सूरज जैसी मखलूक एक माइक्रो सेकंड भी गुरूब होने में नाफरमानी नहीं कर सके। सदियों से आप देख रहे हैं चांद 14वीं की रात होती है तो पूरी टिकिया बन जाता है। कभी आप में से 50 साल के हैं, 70 साल के हैं, देखा होगा कभी ऐसा नहीं होगा कि चांद 10वीं को या 21वीं को मुकम्मल हो गया। ये है चांद का वो ये कहना कि अल्लाह आपने कहा था तो आपने मुझे 14वीं को कहा था मुकम्मल होने को, मैं 14वीं को मुकम्मल होऊंगा, आगे कभी पीछे नहीं होगा। ज़मीन जो घूम रही है, जो झूम रही है, जो भाग रही है, जो दाएं बाएं शेक हो रही है, मेरीन अर्जियात जो जियोलॉजिस्ट हैं वो बताते हैं कि ज़मीन की उस गर्दिशों में 19-20 का फ़र्क भी नहीं है। तो हर चीज़ पूरी कायनात एक बाउंड है। एक मुर्गी के नीचे आप बतख के अंडे रखें, मोर के अंडे रखें, आप चिड़िया के अंडे रखें, लेकिन मजाल है माँ एक है, सेंचने वाली एक है और सारी मुर्गियाँ पैदा हो जाए। नहीं नहीं, जिस अंडे के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग की है वही पैदा होगी। ये है जो अल्लाह ने कहा था वलहु अस्लम मन फिस समावाति वल अर्ज़। तुम मानोगे तो पूरी कायनात अल्लाह की हर मखलूक को मान रही है कि अल्लाह आप जो कहें कि हम करेंगे। सबसे पहले इस हुक्म की वायलेशन शैतान ने की। वो जो कहा था ना फ़क़ाल लहा वलिल अर्ज़ ऐतिया, तो जो अल्लाह ने कायनात की तख्लीक के अव्वलीन लम्हों में जो अहद लिया था उसकी सबसे पहले वायलेशन और नाफरमानी शैतान ने की। शैतान आग कान मिनल जिन, आग से बना हुआ था और फर्मा बरदारी का मजमुआ था। मैंने ग़ालिबन इसी जगह पे कहा था, एक किताब मैंने पढ़ा था कि एक बालिश्त के बराबर ये जो हाथ की हथेली होती है, ये कफ़े दस्त, ये कफ़े दस्त, हाथ दस्त, कफ़ या हथेली, हथेली के बराबर भी जगह पूरी कायनात में ऐसी नहीं है खुश्की की या तरी की जहाँ शैतान ने सजदा न किया। इतना इताअत गुज़ार था। जिन्नों में से होकर जब अल्लाह एक कैबिनेट में मुशावरत कर रहे थे इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, तो ये उस मजलिस में था कि मैं एक ज़मीन पे नायब बनाने वाला हूँ। बोलो तुम्हारा सबसे पहले जो वेटो पावर की और नाफरमानी का बोल बोला वो शैतान ने बोला। मैंने एक बात यहाँ अर्ज़ की थी कि पूरी मखलूक़ात की गुमराही में किरदार शैतान का है। ये ठीक है बात, लॉजिक वाइज भी, शरन भी, अकलन भी, उर्फन भी, कि हर इंसान को डी ट्रैक करने वाला शैतान होता है। तो शैतान को डी ट्रैक किसने किया? यानी शैतान से पहले तो शैतानत वाली क़ुव्वतें नहीं थी। शैतान पायनियर है, बानी है, मुबानी है। शैतान से पहले तो शैतान कोई नहीं था जिसने आके शैतान के अंदर ख्याल इंजेक्ट किया कि तू जो इतना नूरी मखलूक के बीच में नारी होकर नूरियों के बीच में बैठा है। तो शैतान को डिग्रेड किसने किया? तो कुरान मजीद में उसका जवाब आता है उसके नफ्स ने उसको डिग्रेड किया कि तू बेहतर है। तो सबसे पहला जो जुर्म किया वो शैतान ने किया। वो जो इस कायनात के वसी तनाजुर में अल्लाह ने कहा था मेरा हुक्म चलेगा, अब पूरी कायनात ने कहा चलेगा। और मैंने चांदे का आपको मिसालें दी, हर मखलूक उस हुक्म पे आज भी कारबंद है। मजाल है किसी मखलूक में नाफरमानी का खुर्दबीन लगाकर मैं और आप ज़रा भी ढूंढ सकें। बुनियाद रखी शैतान ने, और शैतान के गुमराह होने की बुनियाद क्या थी? तो कुरान मजीद ने पहली बड़ी सूरत जो सूरह बकरा है उसमें पहले गुमराह का नाम लिया और गुमराह की गुमराही की वजह का नाम बताया, फस्तकबरा फिल अर्ज़ वक़ालू, जो इसने कहा अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। सबसे पहले जो शैतान की गुमराही का सबब उसका ज़ौक़ तकब्बुर बना। तकब्बुर की मिसाल ऐसी है जैसे किसी आदमी के चेहरे पे तेज़ाब फेंक दे। एक आदमी के पास कार है, महलात हैं, लिबास है, जो खुदा न खास्ता आपने कभी ऐसे अलाइड अस्पताल में गए हो बर्न यूनिट में, कभी आप में से किसी को मौका मिला हो किसी के बच्चे को खुदा न खास्ता बर्न यूनिट जहाँ जले हुए लोग पड़े होते हैं, या किसी ऐसे आदमी को देखा हो जिसके चेहरे पे किसी ने तेज़ाब फेंक दिया, उसको करंडी पहनाए, रेशम पहनाए, ताज पहनाए, महलात दें, लेकिन जो चेहरे पे तेज़ाब फेंकने के बाद वहशत आ जाती है, दुनिया की कोई चीज़ उस वहशत को मरजइयत में, महबूबियत में बदल नहीं सकती। अल्लाह की ज़ात की कसम, आदमी की रूहानी शख्सियत के लिए तकब्बुर वही रोल प्ले करता है जो आदमी के जिस्म की बदनुमाइशी में तेज़ाब किरदार अदा करता है। आदमी बर्बाद होकर रह जाता है। जितना मेकअप करो, जितना ब्यूटी पार्लर करो, जितना सैलून में ले जाओ, जितना उसको सर्जरी करो, कभी भी तेज़ाब, या मेरा अपना दोस्त था खूबसूरत तरीन नौजवान था, हम पढ़ते थे मेट्रो में
ہائی اسکول کے اندر، اس کے رات کو سویا تھا، کسی نے تیزاب پھینک دیا، پھر عمر بھر بیچارہ اپنے وہ چہرے پہ ہمیشہ گرمی ہوتی، سردی ہوتی، یہاں گلاسز بڑے بڑے ہوتے، پورے چہرے کو بڑے چادر جو دیہاتی قسم کے صافے ہوتے ہیں اس میں لپیٹ کے رکھتا، بازو پہ دستانے چڑھا کے رکھتا، اور وہ لوگ جو اس کے دروازے پہ ہر وقت، اس کے بعد جانا نہ چھوڑ گئے، کیونکہ تیزاب نے اس کی شکل کی ساری محبوبیت کو مسخ کر کے رکھتے ہیں۔ انسانی شخصیت کو جو روحانی پہلو ہے اس کو مسخ کر کے رکھ دیتے ہیں ذوق تکبر۔ اس لیے متفقن علیہ حدیث ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا جنت اس پہ حرام ہے۔ سفیان ثوری سے کسی نے پوچھا وہ کون سا مرض ہے کہ لگ جائے تو کوئی عبادت نہیں بنتی؟ انہوں نے کہا تکبر۔ کہ تکبر اتنا برا کیوں ہے؟ کہ متکبر اللہ کی کرسی پہ جا بیٹھتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں روز بروز شو کاز نوٹس لگتے ہیں ملازمین کو، یہ وقت پہ نہیں ہے، یہ وقت سے پہلے چلا گیا، یہ کام نہیں کرتا، رشوت لے، وہ بحال بھی ہو جاتے ہیں، سسپینڈ بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو مطلب پتہ چل گیا کہ یہ صاحب کی کرسی پہ بیٹھتا ہے، ڈی سی صاحب کی کرسی پہ بیٹھ کر وہاں فوٹو سیشن کرواتا ہے، وہاں بیٹھتا ہے، تو یہ ایک ایسا ہے جس کو کوئی اللہ کہتا ہے الکبریاء و ردائی، اللہ کا نام المتکبر ہے نا، الکبریاء و ردائی، تکبر میری چادر ہے، جس نے اس کو پہننے کی کوشش کی میں اس کی کسی نیکی کو وزن ہی نہیں دوں گا۔ متکبر نہ اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، نہ انسانوں کی بستی میں وہ قابل رحم ہوتا ہے۔ ایک ایسا مرض ہے جو لگ جائے تو ہزارہ خوبیاں اس مرض کو، اس برائی کو چھپا نہیں سکتی۔ تکبر کے بعد کوئی چیز آدمی کو محبوب انسانوں کی بستی میں بنا نہیں سکتی۔ متکبر اکیلا ہو جاتا ہے، تنہائیوں کا عادی ہو جاتا ہے، وہ افسر ہے تو نقصان دہ ہے، وہ باپ ہے تو نقصان دہ ہے، وہ کسی حالت میں متکبر۔ اس لیے میں چند باتیں آج تکبر کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ تکبر مرض لگتا کیوں ہے۔ آپ روزانہ سنتے ہیں کرونا کے لیے یہ وجوہات ہیں، ہیپیٹائٹس سی کے لیے یہ وجوہات ہیں، بی کے لیے یہ وجوہات ہیں، کینسر کے لیے یہ وجوہات ہیں، آشوب چشم کے لیے یہ، تو آدمی بتاتا ہے کہ ان مرضوں کے لگنے کے اسباب یہ ہیں، سرنج استعمال نہ کریں، بازاری چیزیں نہ کھائیں، یہ نہ کریں۔ تکبر کیوں لگتا ہے؟ تکبر 6 چیزوں سے لگتا ہے، وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، پھر میں اور آپ کوشش کریں کہ مر جائیں، تکبر سے بچیں۔ تکبر کا مرض اگر لگ گیا، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ قیامت والے نے پوچھے گا آئین المتکبرون، متکبر کہاں ہیں؟ متکبر کہیں سب سے خوفناک شکل دنیا میں، جو آدمی جس جانور کی شکل لے کے زندگی گزارتے ہیں، قیامت والے دن اسی جانور کا روپ دے دیا جائے گا۔ ایک آدمی ظالم ہے، بے غیرت ہے، عیاش ہے، آوارہ ہے، حرام حلال کا پرواہ کو نہیں، یہ جانوروں کی صفات ہے نا، جو خنزیر کی ہے، کتے کی ہے، شیر کی ہے، چیتے۔ تو ایک آدمی مجبوراً ان جانوروں کا شیپ نہیں لے سکتا، لیکن جانوروں کی صفات لے لیتا ہے، بزدل ہے، مکار ہے، عیار ہے، جھوٹ ہے، لیگ پولنگ کرتے ہیں۔ تو قیامت والدین اللہ ان کو کہے گا کہ فلاں فلاں جانور کی صفات تو نے لی تھی، شکل لے نہ سکا، لہٰذا آج ہم تمہیں اسی جانور کی شکل بھی دے دیتے۔ کوئی کتا بن کے جا رہا ہوگا، کوئی خنزیر بن کے جا رہا ہوگا، کوئی چوڑا بن، کیوں وجہ کہ تم نے انسان بن کر انسانوں کی صفت لینے کی بجائے ان جانوروں کی صفت لی تھی۔ متکبر کو حدیث میں آتا ہے چیونٹی کا روپ دیا جائے گا، چیونٹی پاؤں کے نیچے پامال ہوتی ہے، چیخ نہیں سکتی، لوگ چل رہے ہوں گے قیامت والے دن تو نیچے سے چیخ کی آواز ہے کہ یہ کون ہے؟ کم متکبر ہے، کہ متکبر تو نہیں چیونٹی ہے، کہ متکبر کو چیونٹی کا روپ دے کر ذلیل کیا گیا۔ تکبر کا مرض کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو میں آسانی سے انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، بس میں عالم ہوں، میں شیخ الحدیث ہوں، میں مفتی ہوں، میں پروفیسر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں۔ کسی حوالے سے یہ مرض لگ جائے، کسی حوالے سے کسی آدمی کو، کسی انسان پر اس جذبے کے رکھنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی، میں ایسے بہتر ہوں۔ قرآن مجید میں اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر، سجدہ کرو آدم کو، کر لیا، نہیں کیا، کیوں؟ واستکبر، تکبر کے، انا خیر منہ، تکبر کے آگے اللہ نے 3 لفظوں میں تکبر کی ڈیفینیشن کی ہے، انا خیر منہ، میں ایسے بہتر ہوں۔ بس یہ جذبہ کسی حوالے سے بھی آ گیا، تکبر آ گیا، جیسے کہتے ہیں اس چیز کو آپ نے نہیں آنے دینا، فلاں مرض کے لیے مٹن آپ نے نہیں کھانا چاہے امام کعبہ دعوت کرے، مٹن آپ نے نہیں کھانا چاہے آپ کا پیر کھلائے، مٹن آپ نے نہیں کھانا چاہے قربانی کا مٹن ہو، ڈاکٹر کہتے ہیں یہ آپ کے لیے زہر ہے، یہ آپ کے لیے، اس طرح یہ سوچ زہر ہے کہ میں ایسے بہتر ہوں، یہ سوچ کسی بھی راستے سے ہے، اس سوچ کے آگے ہرڈل، بیریئر، دیواریں چین، بند باندھنا فرض عین ہے۔ اس لیے بڑا خوبصورت علاج لکھا ہے، میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، کہیں جاگ رہے سارے؟ ٹھنڈے اے سی کا یہ نقصان بھی ہوتا ہے کہ وہ آنکھوں میں نیند اترتی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں دونوں گھٹنے اٹھا کر ہاتھ یوں ڈال کر یہ ہوتا ہے نیت کرتا ہوں نیند کی واسطے اس بیان کی،
क्यों जी, होता नहीं, दोनों घुटने उठाने, फिर मुराकबे में चले जाना। अंदाज ये होता है कि मैं दीन से, हालांकि वो उस वक्त उसको बेबे सकीना ही होती है, फिर नीचे मुंह कर लेना, झुका लेना, ये सारे वो होते हैं नियत कर तो नींद की वास्ते इस बयान के अल्लाह अकबर। चल भाई, फिर कहते हैं बड़ा सुकून मिला। कैसा सुकून है कि कुरान सुन्नत से महरूम हो गए। अगर सुकून कुरान सुन्नत से महरूमी का नाम है तो जो जुमे पे नहीं है वो आपसे बड़े सुकून में। ये एसी का ये प्लस पॉइंट है। तो मैं ये क्या कह रहा था जी, अल्लाह का शुक्र है उसी कबीले से हो। जो मैंने कहा था ना एक दफ़ा, एक आदमी ने कहा दो बड़ी अल्लाह की नेमत है, उसने कहा कौन सी, एक मेरा हाफ़ज़ा बड़ा मजबूत, उसने कहा दूसरी याद नहीं आ रही। तो अल्लाह का शुक्र है उसी कबीले से हो। उसने कहा बड़ा खूबसूरत इलाज है तकब्बुर से बचने का। क्या? उसने कहा जब घर से निकलो तो जिसको देखो कहो ये मेरे से बेहतर है। आखिर सर्जरी भी तो करवाते हैं ना, कड़वी गोली भी तो लेते हैं ना, इंजेक्शन भी तो लेते हैं ना, हॉस्पिटलाइज भी तो होते हैं ना, लोगों को पैसे, कितनी टांगे कटवा लेते हैं लोग सेहत के लिए, हाथ कटवा लेते हैं सेहत के लिए, गुर्दे निकलवा लेते हैं, करते हैं। बैरून दुनिया चले जाते हैं, इंग्लैंड में चले गए, भारत में चले गए। जिस्मानी सेहत के लिए जितने कड़वे मराहल से गुजरते हैं, रूहानी सेहत के लिए उतना तो गुजर जाएं जब घर से बाहर निकलें। हमारी कौम वैसे तो मजमूई मुतकब्बिर कौम है। दुनिया के 251 ममालिक में मुतकब्बिरीन के इमाम बसते हैं पाकिस्तान में। हमारा फ़कीर और गदरड़ी वाला मुतकब्बिर है। आप पराडो पे जा रहे हैं, आपके पास 1 करोड़ की पराडो है, गदरड़ी वाला जा रहा है एक्सट्रीम राइट पे, उसको एक्सट्रीम लेफ्ट पे होना चाहिए। गदरड़ी आपने 2 दफ़ा हॉर्न दिया, इतना तकब्बुर से हाथ करेगा मत पूछिए। आपने कभी गाड़ी पास करते हुए देखा होगा कि हालांकि वो गलती पे है। यानी हमारे अगर दुनिया के लोगों को मुतकब्बिर एक्सपोर्ट करने का मौका मिलता, पाकिस्तान इमाम होता। गदरड़ी वाला भी मुतकब्बिर है। उसका नुकसान क्या है? जितनी कचहरियाँ, जितने मुकदमे, जितने थाने, जितना कत्ल तलकियाँ, जितने आपस में माशरती रवैयों की फटन, जितनी तलाक़ें, जितने खुला, पाकिस्तान में मुतकब्बिरीन की बस्तियों में इंसानों में वहदत पैदा नहीं हो सकती। तकब्बुर आजिज़ी का हिस्सा है। मुतकब्बिर आजिज़ी नहीं, ताल्लुक़ नहीं बना सकता। इसलिए जितना फटन और जितने मुकदमे ओवर करोड़ों पड़ा अदालतों में ना। मैं कल बैठा था सेशन जज साहब के पास, कह प्रोफेसर साहब इतने मुकदमे पड़े हैं। मैंने कहा ये कम नहीं होंगे जब तक कि इसका असल इलाज ना करो। कोरोना के लिए क्या कुछ किया। तकब्बुर कोरोना से खरब गुना ज़्यादा खौफनाक मर्ज है। इसके लगने के 6 रास्ते हम अर्ज कर देते। सबसे पहला रास्ता इल्म। PhD वाला MA वाले को और अंदाज से देखेगा, MA वाला BA वाले को और अंदाज से देखेगा, शेखुल हदीस आलिम को और अंदाज से देखेगा, आलिम कारी को और अंदाज से देखेगा, मोतमिम तो खैर देखेगा हर एक और अंदाज से। ये जो इल्म का तकब्बुर है ये तमाम तकब्बुर से खौफनाक है। इल्म बढ़ता जाए तो उसका उसका बदल क्या है कि एक दरख्त की शाखों पे फल बढ़ता गया तो उसको अकड़ना चाहिए, झुकना चाहिए। तो फितरत कहती है एक शाख पे 50 माल्टें, एक शाख पे 100 माल्टें। मैंने सरगोदा के इलाके में देखे शाखों के नीचे टेक दी होती। तो जिस आदमी के अंदर इल्म के फल बढ़ते जाएं, मिजाजन उसकी शाख को झुकना चाहिए। यहाँ तो गर्दनों में सरिये पड़ जाते हैं, दूसरी उंगली के तीसरे पोरे तक सलाम नहीं करते। इल्म का तकब्बुर। अना खैरुम मिन, मेरा इल्म इससे बेहतर है। कुरान ये कहता है, अच्छा ये बता असबाब इल्म तेरे ज़ाती हैं। जाल लकुमुस समा वल अबसार वल अफिदा। इसका तोड़ ये कि जिन ज़राए से इल्म हासिल किया है, आँख है ना, 5 है ना, हवास खमसा, आदमी इन्हीं से इल्म हासिल करता है। तो जिन हवास से इल्म हासिल किया वो तेरे ज़ाती हैं। फिर उन हवास को पूरा रखना। बाज़ लोगों की आँख कमज़ोर है, बाज़ लोगों का दिमाग कमज़ोर है, बाज़ लोगों की समात कमज़ोर है। अगर ये चीज़ें तेरी भी कमज़ोर होती हैं क्या इल्म हासिल कर सकता? फिर आज़ा सलामत हूँ और आज़ा और इल्म के ज़ौक़ में मुमासलत पैदा करना कि एक आदमी आज़ा भी सलामत है, उसको इल्म का शौक़ कोई नहीं। क्या इल्म का खासा तकब्बुर है या तवाज़ु है? इमाम गज़ाली ने लिखा है, जिस इल्म के बाद तकब्बुर आ जाए उस आलिम को जाहिल कहना फ़र्ज़ ऐन है। जिस इल्म के बाद तकब्बुर आ जाए उस आलिम को जाहिल कहना लाजिम है। इल्म का खास है। एक आदमी डॉक्टर है, उसको तो बीमारी के दिनों में ज़्यादा परहेज़ करना चाहिए। एक आदमी आलिम है, उसको ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। तो इल्म के तकब्बुर से बचा जाए। ये पहला तकब्बुर है जो अक्सर हमारे यहाँ पाया जाता है। थोड़ा सा इल्म आ गया मत पूछो। फिर आदमी सोचे कि जो इल्म दुनिया में पड़ा है वो ज़्यादा है या जो मेरे अंदर है वो ज़्यादा है। तो आप हैरान होंगे कि हमारे पास ज़र्रा भी नहीं
बिखरा हुआ सहरा पड़ा है। अगर हम इल्म की शाखें और ब्रांचेस देखें तो जो इल्म पढ़ा है हमारी दस्तरस में कहीं है, जहालत हमारे ऊपर ज़्यादा है। वमा ऊतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, तुम्हें बहुत कलील इल्म दिया गया। मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा जो कुर्तबी ने लिखा है उसमें ये लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम एक कश्ती में बैठे तो सारी बातें हो रही थी, इतने में एक चिड़ी आई, उसने आके दरिया समंदर था तहद नज़र, उसमें से चूंच भरी और चूंच में पानी लेके कश्ती बैठ गई। तो खिज़र अलैहिस्सलाम कहने लगे मूसा अलैहिस्सलाम से ये क्या है? क्या पता नहीं। कि ये चिड़िया ये बता रही है कि तुम्हारा और हमारा इल्म इतना भी नहीं है अल्लाह के मुकाबले में जितना इस चींटी के मुँह में कतरा और समंदर की निस्बत है। तो दुनिया में हर आदमी पे जहालत ज़्यादा, इल्म कम है। तो जिस आदमी पे 99 पॉइंट जहालत हो और 1 पॉइंट में वो भी पता नहीं हुआ नहीं हुआ, उसको इल्म पे तकब्बुर करने का तुक नहीं बनता। दूसरा जो तकब्बुर का बहस बनता है वो है इबादत। इल्म के बाद इबादत, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। उस इबादत पे तकब्बुर आदमी करे जो इबादत कबूल होने की सनद आसमान से आ गई। जो इबादत अंडर ट्रायल है, पता नहीं कबूल है मरदूद है अल्लाह पसंद, जिस बारे में कोई पता नहीं। जो इबादत खुद दुनिया में कोई शख्स कहे कि मैंने ये इबादत अल्लाह के शान शान कर दी। एक फ़कीर माज है, गरीब है, कुटिया नशी है और अपनी वो सारी चीज़ें बेचकर बादशाह वक्त की दावत करता है। अपने बर्तन बेच देते हैं, अपनी बकरी बेच देते हैं, मुर्गियाँ बेच देते हैं, बेच के बादशाह वक्त की दावत करता है। तो फिर भी सिमटा जा रहा होगा जी कि आपके शान शान तो कुछ नहीं हो सका, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं था। दुनिया के तमाम इंसानों की बातें अल्लाह के मुकाबले में ऐसी हैं कि अल्लाह जो कुछ था कर दिया, लेकिन तेरे शान शान तो टके के बराबर भी नहीं हो सका। और अगर इबादत पे तकब्बुर है तो काबा के रब की कसम वो इबादत अल्लाह के नज़दीक मरदूद हो चुकी है। जिस इबादत पर तकब्बुर आ गया, मैं इशराक पढ़ता हूँ, मैं चाश पढ़ता हूँ, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं उम्र करता हूँ, मैं ज़िक्र करता हूँ, मैं तिलावत करता हूँ, मैं तबलीग करता हूँ, मैं जिहाद करता हूँ, मैं इल्म पढ़ता हूँ, जो इबादत तकब्बुर का बायस बने उस इबादत के मरदूद होने में दूसरी राय ही कोई नहीं। क्योंकि इबादत का खासा तवाज़ु है। मूसा अलैहिस्सलाम पे वही एक आदमी था मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में इंतहाई आबिद, एक आदमी था इंतहाई फासिक। फासिक ने एक दिन चाहा कि आबिद के पास जाके बैठूं, तो वो चल के आबिद के पास है। फासिक ने कहा ये, आबिद ने कहा ये सर तपा गुनहगार है, मैं इससे बचूं। वो उठ के वहाँ से चल पड़ा। अब फासिक आबिद की इबादत से मुतासर होकर करीब आया। आबिद फासिक की फिस्क से मुतनफ़िर होकर दूर हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम पे वही है कि जाओ आबिद को कहो तेरे तकब्बुर ने तेरी इबादत को जला के रख दिया, और फासिक को कहो तेरी तवाज़ु ने तेरे सारे गुनाहों को मिटा के रख दिया। दूसरी चीज़ यह है कि इबादत पे कभी तकब्बुर न करें। इबादत इंतहाई दर्जे की आजिज़ी का नाम है। आप देखते नहीं जो आदमी एक खेती बाड़ी में हल चलाता है ज़मीन में, फिर एक पगडंडी होती है चलने के लिए, एक होता है कुछ लोग बीच में रास्ता बना लेते हैं। बीच में जब रास्ता बनाते हैं तो वो आदमी के चलने से, घोड़े के चलने से, साइकिल के चलने से वो ढीले टूट कर ज़र्रा ज़र्रा हो जाते हैं, बारीक हो जाते हैं। उन पिसे हुए ज़र्रात को अरबी में अब्द कहते हैं। तो इबादत तो आदमी को पीस के रख देती है। कुछ आके इबादत करने के बाद आदमी के अंदर तकब्बुर के ढीले आ जाए, इबादत तो है ही पिस जाने का नाम। और अगर इबादत ही ढीले को वैस बन जाए तो उस इबादत से तौबा बेहतर है। तीसरी चीज़ जो ज़रिया तकब्बुर बनती है वो है नसब। मैं ये मेरी बिरादरी है, मैं फ़लाँ मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक आदमी ने कहा मैं फ़लाँ का बेटा, वो उसका बेटा, तो उसने अपने 10 नसब बयान किए। ऊपर से वही है, उनको कहो वो 9 के 9 तो गए दोज़ख में जिन पे तू फ़ख्र कर रहे। नसब, जिन नसब पे फ़ख्र कर रहे वो 9 के 9 दोज़ख में, 10वां तू भी उन्हीं के साथ चला गया। हज्जतुल विदा के मौके पे आपने फरमाया था किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं, किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं। जितना नसब का तकब्बुर बरसगीर पाक व हिंद में, सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान में और इंडिया में किसी में नहीं है। 100 कॉल्स आते हैं। मैंने कहा हमारी बिरादरियाँ 30 पोस्ट पे जाकर कोई हिंदू खड़ा, कोई सिख खड़ा, कोई ईसाई खड़ा, 5वें पोस्ट पे। मैंने एक दोस्त से पूछा राणे क्या सिर्फ मुसलमान होते हैं? उसने कहा नहीं, राणा भगवान दास नहीं था, ऐसे कह दिया। मैंने कहा गुजर सिर्फ मुसलमान होते हैं? उसने कहा गुजर सिर्फ। मैंने कहा जो बिरादरियाँ हिंदुओं के भी हैं, सिखों की भी हैं, उस पर तकब्बुर क्या माना? आला तरीन बिरादरी कायनात में कुरैश है, आला तरीन बिरादरी, जो कि आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिरादरी है।
تو اب فرمایا تھا کسی قریشی کو غیر قریشی پر کوئی فوقیت نہیں. آپ جتنے حضرات تشریف فرمائے آپ میں سب کے نام ہوں گے. نام کیوں رکھے جاتے ہیں؟ تاکہ آواز دی جائے تو صرف وہ آدمی دیکھے، کنفیوژن نہ ہو. یہ معاشرتی مجبوری ہوتی ہے، یہ کوئی تفاخر نہیں ہوتا، تعارف کے لیے ہوتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ برادریاں اور قبیلے تعارف کے لیے، تفاخر کے لیے نہیں ہیں. اور جو آدمی اپنی برادری کے نام کے اظہار سے فخر محسوس کرے اس کو برادری کا حوالہ چھوڑنا فرض عین ہوتا ہے. جو آدمی اپنی برادری میں رانا ہوں، میں گجر ہوں، میں ارائی ہوں، میں شیخ ہوں، اللہ بلا جو بھی ہے، میں نام نہیں گننا چاہتا ہوں، ان کے تعارف کی حد تک قرآن نے سورہ حجرات میں کہا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تعارف کی حد تک اجازت ہے. جیسے گاڑیوں کے نمبر ہوتے ہیں، تاکہ آئی ڈی کے نمبر ہوتے ہیں، ہر ایک آپ کو شناختی کارڈ کا نمبر ہے، شناختی کارڈ کا نمبر موبائل کا نمبر ہے. کیوں؟ تاکہ گھنٹی صحیح جگہ پہ جا سکے. اب کوئی آدمی موبائل کے نمبر پہ فخر کرے یا کار کے نمبر پہ فخر کرے یا گاڑی کے، تو اس پہ دیوانہ کہا جائے گا. بعین ہی کائنات کے سرکل کو چلانے کے لیے برادریاں اور قبیلے کعبہ کے رب کی قسم تعارف ہیں، تفاخر نہیں ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ حضور نے فرمایا تھا میری امت کا عیسیٰ ہے. کتنا پیارا مثال، عیسیٰ، ابو ذر رضی اللہ، عیسیٰ میری امت کا. انہوں نے ایک آدمی کو کہا ہو کالی ماں کے بیٹے، آپ فرمایا ابو ذر تیرے اندر ابھی تک نسب کی بدبو نہیں گئی؟ حبشی کو کہا او کالی ماں کے بیٹے کا تیرے اندر ابھی تک نسب کی بدبو نہیں گئی؟ اللہ کو کیا منہ رنگ دے، بھلا رنگوں پہ بھی کسی کے کردار ماپے جا سکتے ہیں. پھر ابو ذر رضی اللہ عنہ روئے، اس بندے کو بلایا کہ تو اللہ کے واسطے میں سر رکھتا ہوں زمین پر، میرے رخسار پہ پاؤں دے تاکہ کالے سفید ماں کے بیٹے کو کالی ماں کا بیٹا پاؤں کے جوتے کے تلووں سے روندے تاکہ نسب کا تکبر نکل جائے. ہمارے ہاں تو بھرے پڑے ہیں تکبر نسب کے. میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ نسب جو ذریعہ تکبر بنے اس کا چھوڑنا فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے. اپنے نام کے ساتھ یہ دم چھلا نہ لگایا کریں. اگر تعارف سے تفاخر میں چلا گیا، یہ کوئی دوسرا کمنٹ نہیں پاس کر سکتا کہ یہ میں اپنے نام کے ساتھ یہ لکھاتا ہوں، یہ خود وہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے. کوئی چوتھا نہیں، دوسرا نہیں کہہ سکتا. تو علم کا تکبر ہو، عبادت کا تکبر. چوتھا تکبر مال کا ہے. تیرے جتنے مہینے کی کمائی ہے میں تو ایک کھانے پہ لگا دیتا ہوں. یہ ایسے بولتے ہیں بھینس نما انسان. زیادہ کھانا تو جانوروں کی صفت تو ہے، انسانوں کی صفت تو نہیں. میں ایک کھانے پہ لگا دیتا ہوں، کتنی ماہانہ آمدن ہے. تو مال پہ تکبر بنتا ہے. میں کچھ نہیں، میری حیثیت کچھ نہیں. مال اللہ نے دیا، آزمائش ہے. مال کی بنیاد پہ تکبر نہ کریں. شریعت نے کیوں کہا ہے بیری کے پتے پانی میں ڈال کے نیم گرم پانی کر کے انسانوں کو غسل دو تاکہ انسانوں کے وجود میں مسام کے اندر دنیا کی میل نہ جا سکے. بیری کے پتے شیمپو کا کام کرتے ہیں، صابن کا کام کرتے ہیں. کیوں کہا کہ دنیا کا سب سے کم قیمت کپڑا کفن میں رکھو اور دنیا کا سب سے کم قیمت اور بے وقت زمین کا ٹکڑا قبر میں رکھو. اور کفن کے اندر کبھی بھی سٹیچ نہیں ہوتا، ان سٹیچ ہوتا ہے، سلا نہیں ہوتا، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ کفن میں جیب لگی اور پیسے لے کے چلا گیا. ایک بچے کو بازار دیتے ہیں روزانہ، ایک بچے کو 500 دیتے ہیں، ایک کو 100 دیتے ہیں. تو شام کو حساب دینا کس کو آسان ہوگا؟ آپ کو پتہ ہی. وہ کہے گا وہ 100 کی بوتل آ گئی، وہ کہے گا 500 والا تم بتاؤ 1000. تو زیادہ مال والے کو قیامت والے دن حساب کے لیے لمبا کھڑا ہونا پڑے گا. آپ نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا، عبد الرحمن میں نے خواب میں دیکھا لوگ جنت میں آ رہے ہیں، جنت میں آ رہے ہیں، تو نظر ہی نہیں آ رہا. میں اشرم مشرم ہے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ اشرم مشرم ہے، ایکسپورٹ کا کاروبار کرتے تھے. تو جنت میں نظر نہیں آ رہا. میں بیٹھا ہوں دروازے پر، حتیٰ کہ تو ایسے گرتا گرتا جنت پہ گرا دروازے پر، اور تو نے کہا یا رسول اللہ میرا ہاتھ پکڑ لیں. تو میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے اندر کیا. میں نے پوچھا کیا بنا؟ اس نے کہا جی مال کا حساب دیتا رہا. تو زیادہ مال تو پکڑ کی بحث ہے، اس پہ فخر کون سا ہے؟ کہاں سے کمایا، کہاں سے خرچ کیا، یہ دونوں سوال مالداروں کے لیے الگ سے سر پہ کھڑے ہوں گے. قیامت کے جو 5 سوال ہیں ان میں ایک سوال یہ ہے، 2 سوال یہ ہیں، مال کہاں سے کمایا یہ الگ سوال ہے، مال کہاں خرچ کیا وہ الگ سے سوال ہے. ایک آدمی کو دیا ہی کیا تھا جو حساب لے. غریبوں کو اللہ کہے گا میں نے تمہیں دیا ہی کیا تھا جو تم سے حساب لوں. تو زیادہ مال تکبر کی بجائے اس بات کی نشانی ہے کہ یا اللہ میں تو مر گیا. جیسے میں نے کہا نا 1000 روپے والے بچے کو کلیئر ہونا کتنا آسان ہے، اور اس کو کتنا.
नेक्स्ट जो तकब्बुर का बहस बनता है वो वज़ा कद काठ बनती है। फ़अम्मा आद फस्तकबरू फिल अर्ज़ बिग़ैरिल हक़ वक़ालू मन अशद्दु मिन्ना क़ुव्वा। कौम आद का बर्बाद हो जाने का सबब उनके कदो कामत पे नाज करना था। 6 फुट हमारे यहाँ 6.5 फुट से निकलता हुआ इंसान। बनिना इंसान में तवील तरीन कद कौम आद के थे। फस्तकबरू फिल अर्ज़ वक़ालू मन अशद्दु मिन्ना क़ुव्वा। उनके तकब्बुर की बुनियाद उनकी बॉडी की फिजिक्स थी। बॉडी बिल्डर टाइप लोग थे, सीना ऐसा, बाजू ऐसे, गर्दनें ऐसी। इस पे दूसरों को हकीर जानना। आदमी कुव्वत पे नशा करता है, मेरा बड़ी ताकत है। ताकत कितनी है? चींटी कितनी छोटी होती है? चींटी का मुंह कितना छोटा होता है? मुंह में लगी हुई सुरंज कितनी छोटी होती है? आप कहेंगे इसको तो तखय्युल से भी आदमी नहीं नाप सकता। आदमी ख्याल को भी मुज्तमे करना पड़ता है चींटी के मुंह में लगे हुए सुरंज को जानने के लिए। ख्याल को भी तकल्लुफ से जमा करना पड़ता है। तो वो चींटी अगर 6.5 फुट के आदमी के पाँव की छोटी उंगली की जड़ में अपने सुरंज गाड़ दे, क्यों जी? पता चल जाता है कि ताकतवर का क्या ताकत थी, कैसे बिदक के और तड़प के खड़े हो जाता है। अल्लाह कहता है ये कुल कायनात है ना। चींटी के एक डंग को बर्दाश्त न करने वाले को अकलन लॉजिक वाइज अपनी कुव्वत पे इतराने का कोई हक बनता है? 4 दिन लूज मोशन लग जाएं, आदमी इशारों से नमाज पढ़ता है, निचट जाता है, किसी काम के काबिल नहीं रहता। बुढ़ापा है इसके ऊपर, बीमारी है इसके ऊपर, ज़ोफ़ है इसके ऊपर, जिस्म के बेशुमार अज़ा में से कोई एक उज़्व फंक्शन लेस हो जाए। जिन लोगों को कैंसर होता है, जिन लोगों को जरकान होता है, जिन लोगों के गुर्दे डैमेज होते हैं, क्या वो बदपरहेज़ी करते? इसी फ़ज़ा में जरासीम भरे हुए हैं ना। कुदरत हमें मेहरबानी करके जिस्म के तमाम अज़ा को पुरसकून करके रात को साउंड स्लीप देती है, सुबह बग़ैर किसी के सहारे के अपने पाँव से उठ के खड़े हो जाते हैं। तो इसका ताल्लुक़ शुक्रगुजारी है या इसका ताल्लुक़ लोगों पे तकब्बुर है? आप अकल से सोच लें। ये 5वां तकब्बुर का सबब बनता है कद कामत। ऐसे पकड़ते और फेंक देते हैं। फ़अम्मा आद फस्तकबरू फिल अर्ज़ बिग़ैरिल हक़ वक़ालू मन अशद्दु मिन्ना क़ुव्वा। और छठा यह है कि अफरादी कुव्वत। यहाँ सारे हमारे घर हैं, 2 घर गुजरों के हैं। ये अक्सर जुमला बोल रहे थे ना, सारे घर हमारे हैं, सिर्फ 2 घर अराइयों के हैं। ये है अफरादी कुव्वत पे नाज। अराइयों का कलमा कौन सा है? मनफत एक है, इस कौम का नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात ही होते जो मुसलमान भी एक। सारे घर हमारे हैं, 2 घर फुलां के किसी कौम का नाम ले लेते हैं हमारे यहाँ। इस बस्ती में सारे घर हमारे हैं। ये होता नहीं तकब्बुर, अपनी अफरादी कुव्वत पे नाज होना। कौम नूह को जिस तकब्बुर ने बर्बाद किया वो अफरादी कुव्वत थी। शैतान को जिस तकब्बुर ने बर्बाद, एक डंग लगा शैतान को, वो था नसब का डंग। शैतान को इल्म का डंग नहीं था, इबादत का डंग नहीं था, माल का डंग नहीं था, एक डंग लगा नसब का डंग। हम में से कुछ ऐसे हैं जिनको 6 डंग लगे हुए हैं, कुछ को 5 डंग लगे हुए हैं, कुछ को 4 डंग लगे हुए हैं। एक डंग नहीं बर्दाश्त करा। लिखा है मुफस्सरीन ने, इमाम गज़ाली ने लिखा है तकब्बुर के चैप्टर में, शैतान को सिर्फ एक डंग लगा था, अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। ये नसब का डंग है, मेरा नसब बेहतर है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग आग से है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग पानी से है, मट्टी से है। और मट्टी झुकती है, आग उठती है, मट्टी पामाल होती है, आग जला के रख कर। तो उसने बिनाए तख्लीक पे नाज किया, मेरे ये अल्लाह ने कहा फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लाना इला यौमिद्दीन। ये क़यामत तक के लिए लानत का शैतान को तोक दिया गया, उसका सबब तकब्बुर था। मुतकब्बिर जिस रूप में हो, पैज़न है, जहर है, बदबू है, ताफ़ुन है, ग़लाज़त है, एटम बम है, जिस रूप में भी हो, और तकब्बुर का मर्ज़ लग जाए, रूहानी मर्ज़ बढ़ जाए तो आदमी दोज़ख के करीब जन्नत से दूर होता है, और जिस्मानी मर्ज़ बढ़ जाए तो आदमी जन्नत के करीब दोज़ख से दूर होता है। 1 दिन का बुखार 1 साल के गुनाह माफ़ कर देता है। बुखार हो गया ना, 1 दिन का बुखार 1 साल के गुनाह माफ़ कर देता है, लेकिन 1 दिन का तकब्बुर। इमाम गज़ाली का पहली सदी में खानकाहें जो रूहानी शिफा खाने थे, जैसे अब ये अस्पताल है हमारे अलाइड फलां, पहली सदी में जो खानकाहें थी वो रूहानी शिफा खाने थे। सबसे ज़्यादा जो खौफनाक वार्ड था वो मुतकब्बिरीन का था। मुतकब्बिरीन के वार्ड में कोई जाता नहीं था,
जिस तरह हमारे यहाँ कुछ वार्ड अस्पताल में ख़तरनाक होते हैं, किस वार्ड में? कैंसर वार्ड में, खुदा ना खास्ता, तो आदमी डर जाता है, ये ब्लड कैंसर है। तो खानकाहों में खौफनाक वार्ड तकब्बुर का वार्ड होता था। तो हमारे यहाँ तो तकब्बुर के इतने गुब्बारे हैं कि मत पूछो। मैंने एक दिन सुनाया था आपको, मैं घर जा रहा था मोटरसाइकिल पे, तो बीच में डिवाइडर था, इस पार एक आदमी गुब्बारे बेच रहा था, बड़े बड़े गुब्बारे, 2-2 फुट के, 3-3 फुट के, मल्टी कलर्स, तो ऐसे गोल। तो हमारे यहाँ बचपन में छोटे छोटे गुब्बारे होते थे। तो मैंने उसको पूछा कि ये गुब्बारा कितने का? उसने कहा 30 रुपये का, या ऐसा कोई फिगर बताई। मैंने कहा ये दे दो 2-3, मेरे दिन में था कि बच्चों को दूंगा। तो उसने वो साइकिल के हैंडल पर लटके हुए एक प्लास्टिक के शापर में से इस उंगली के बराबर एक गुब्बारा निकाल के कहा ये लो। मैंने कहा नहीं ये दो। उसने कहा वो भी यही था, इसमें हवा भर गई है। बेसिकली हम सारे शापर के गुब्बारे होते हैं, हवाएं भरती हैं डबल डोंकी की। तो मैंने उससे गुब्बारा लिया तो वो इतना टाइट था कि अंदर उंगली न जाए। मैंने कितने ज़्यादा क्यों हवा भर दिया? उसने कहा ज़्यादा हवाएं ना भरें तो फटते नहीं है। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारे यहाँ कुछ लोग इतने भरे होते हैं तकब्बर से, हल्का सा हाथ लगाएं उनका चेहरा लाल पीला हो जाएगा, इंसानों से जानवरों में चले जाएंगे। तकब्बर का तोड़ ये है, मैंने बताया। एक तो मैंने हर तकब्बर की किस्म का, दूसरा ये था कि जब भी घर से निकलें, आप कार पे हैं, तकब्बर डंग सिर्फ ये नहीं कि डंग मारता है सांप, बिच्छू, भेड़, कार भी डंग मारती है, मोबाइल भी डंग मारता है, कोठी भी डंग मारती है, चेक बुक भी डंग मारते हैं, और गेट खोलने वाले रवैये भी डंग मारते हैं, बड़े ओहदे भी डंग मारते हैं, रिवॉल्विंग चेयर्स भी डंग मारती हैं, मियाँ साहब की आवाज़ें भी डंग मारती हैं। ये सारे सांप होते हैं अलग अलग किस्म। शहर के माहौल में भी सांप 100 किस्मों के हैं। जोगियों फेरा इधर भी एक वीराने के बाद। शहर के माहौल में भी सांप 100 किस्मों के। जोगियों फेरा इधर भी एक वीराने के बाद। यहाँ तो बड़े बड़े फनियर पड़े हैं। इसका तोड़ क्या है? ज़ुबान से कहें ये मेरे से बेहतर है। जिसको देखें, जिसको शायद लगने लगे तो उसकी वैक्सीनेशन करें, ये मेरे से बेहतर है, ये मेरे से बेहतर है, ये मेरे से बेहतर है, और अपने नाम के साथ वो चीज़ें निकाल दें जो ज़रिए तकब्बर हैं। क्योंकि अल्लाह जानता है इसने बिरादरी का नाम अपने साथ बांदाज़ तकब्बर रखा हुआ है या बांदाज़ तारुफ रखा हुआ है। अल्लाह को जस्टिफाई करना है। अला यअलमु मन खलक़, कुर्तुबी ने लिखा है, एक आदमी घने जंगलों के बीच में सफ़र कर रहा था। घने जंगल, पत्तों पे पत्ते, पत्तों पे पत्ते, हज़ारों पत्तों की तह लग जाती हैं। तो उसके ज़हन में आया कि ये पत्तों की जो लेयर्स हैं, तहें जमी पड़ी है, क्या अल्लाह इन तमाम पत्तों को जानता है? तो आयत उतरी, अला यअलमु मन खलक़ वहुवल लतीफ़ुल ख़बीर। भला खालिक भी मखलूक से गाफिल हो सकता है? तो जो खरबों पत्तों से वाकिफ़ हो सकता है, मेरे नाम के साथ लगाए हुए बिरादरी के दुम छले के जज्बों से वाकिफ़ नहीं है? बोलें जी, बचें। क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमल, कहा एक मुअन्नस चींटी ने, ओ चींटियों। तो मुअन्नस क्यों डिस्कस किया? एक चींटी ने कहा। मुअन्नस का इसलिए बताया कि तुम्हारा रब चींटी की जेंडर जान सकता है तो तुम्हारे जज्बों को नहीं जान सकता। दूसरा इसका इलाज ये है कि गरीब लोगों के पास बैठा करें, ये वैक्सीनेशन, उनको अपने एहसान समझें। ये हमारे केयर टेकर हैं, उनके एहसान समझे। जो छोटे ग्रेड के हैं, जो छोटे मुलाजिम हैं, उनके साथ खाना खाएं, उनको पास बिठाएं वैक्सीनेशन के लिए। 4 दिन के बाद जब मुतकब्बिरीन के जनाजे देखें, मुतवाज़िन के जनाजे देखें। हमारे मुआशरे में मुतकब्बिर होते हैं, हम उनके मुतल्लिक़ क्या रवैया रखते हैं? अगर हमारे अंदर तकब्बुर आएगा तो हम उसी पैमाने पर परखे जाएंगे ना। मारे गए वो लोग जो जिनके अंदर तकब्बुर का मर्ज लग गया, न दीन के रहे, न दुनिया के रहे, न मखलूक के रहे, न खालिक के रहे। दूसरी यह है कि मुतकब्बिर की एक पहचान ये होती है कि सलाम में पहल करते हुए घबराता है, मुझे सलाम किया जाए। अगर ये मर्ज लग जाए तो सलाम में पहल करें, इलाज की खातिर। कड़वी गोली नहीं खाते, बाजू में इंजेक्शन की ड्रिप नहीं उतार लेते। तो ये कौन सा ऐसी चीज़ है जो फेवरेबल है? जब इतनी कड़वी गोलियां खा लें, और ज़रूरी भी नहीं कि शिफा मिल जाए, सलाम में पहल करें, तकब्बुर दूर हो जाएगा। मुतवाज़े लोगों के पास बैठे और एक और इलाज है जिसके लिए आप बड़े शौक़ से करेंगे, वो ये है मुतकब्बरों के साथ तकब्बुर से पेश आओ। ये भी तकब्बुर, ये भी नेकी है। ये तो अल्लाह का शुक्र करते हैं आप, क्यों जी? मुतकब्बरों के साथ तकब्बुर से पेश आओ। हदीस में आता है मुतकब्बिर के साथ तकब्बुर से पेश आना सदका है। जैसे बिच्छू को जूता मारना सदका है। क्यों? ताकि दूसरे लोग बिच्छू के जहर से बचें। मुतकब्बरीन की हुजूर जी हुजूरी करने वाले मुतकब्बरीन के ज़ौक़ तकब्बुर में इजाफे का बायस बनते हैं। कभी भी मुतकब्बिर के सामने बिछ के झुक के न चलो, ये शिर्क की निशानी है। मुशरिक
کبھی متکبر کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، اور متکبر کبھی حق بندگی ادا نہیں کر سکتا. تو کوشش کریں گے جی